Hello friends, this is Abhishek and I hope you all are doing great. By now, you must have understood this channel is all about educational, informative and things which matter to society. Today as well, we are going to discuss one such topic which is very important for the society and it has been there in the society for long, and that is autism. Globally, it is observed as World Autism Awareness Day. This is the 13th year in a row. This day is observed to highlight the need to improve the quality of those with autism and how exactly they can live life to the fullest. Through this video, people are aware about autism and the challenges related to it. एक सेंटेंस में कहा जाए तो जो भी चीजें डिफरेंट होती हैं उसको हमेशा चैलेंजेस फेस करने की पड़ती है. पीपल हु आर परसीव्ड डिफरेंट आर ऑलवेज स्टिग्मेटाइज्ड. देयर आर ऑलवेज false notions and stereotypes what it means to experience autism. लोगों के अपनी अपनी धारणा है. लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी समझ के बैठे हैं. जहां भी कुछ भी अलग डिफरेंट दिखता है उनको लगता है ये गलत है. अरे आपकी उंगलियां ही डिफरेंट है, पांचों उंगलियां डिफरेंट है एंड पांचों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. ये बात समझनी पड़ेगी लोगों को और बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी. ऑटिज्म के डिटेल्स के बारे में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफिकल्टीज होती है सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में, विच में इंक्लूड द रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर. पेरेंट्स को बच्चे के फर्स्ट 3 इयर्स में ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखते हैं जो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं. आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि 500 में से एक बच्चा ऑटिज्म का डायग्नोस्ड होता है, विच इज एक्चुअली द 0.2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. अगर हम इसको लैक्स में कैलकुलेट करें तो 21.6 lakhs individuals in India are diagnosed with autism according to the Rehabilitation Council of India. To know more details about autism, we have spoken to Dr. Prajakta Patkar and this is what she has to say. Autism is a very complex neurodevelopmental condition which is characterized by problems in communication and behavior. It is not a very physically evident condition, but it's more recognizable in the way that the patient interacts, behaves and communicates. You might be surprised to know that as much as 0.1 to 1.1% of the Indian kids below the age of 5 may have autism, but a very small proportion of them actually get diagnosed. Mostly because of the fact that people are very poorly aware of this disorder, and secondly, even if they are, they do not know whom and how to approach. So what is the need for this early diagnosis? Because it might not be a very degenerative disorder, but it's a very highly disabling disorder. It's not just disabling physically and mentally for the person with autism, but it also affects the primary caretakers and the family members of this person or child. So we need to understand that earlier the diagnosis, earlier the intervention, better is the quality of life of the whole family. On this World Autism Day, I hope we do our bit in trying to promote and spread awareness of autism. आपको एक स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा जो 2 दिन पहले ही पब्लिश हुई है अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में, which was led by Simon Fraser University's Faculty of Health Science researchers, according to which increased exposure to the selected environmental toxicants like metal pesticides, PCBs, BPA, impacts the brain development during pregnancy, which leads to autistic-like behavior in kids. सोच के ही डर लगता है कैसा environment हम तैयार कर रहे हैं अपने आने वाले generation के लिए. What kind of environment is this? As a parent of an autistic child, what all challenges one has to face, I got to know when I spoke to Mr. Anurag Talukdar. This is what he has to say. Hello everyone. So I guess अब तक आप लोग को पता चल गया होगा कि ऑटिज्म क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा कि ऑटिज्म का आपके ऊपर एज अ पेरेंट उसका क्या असर होता है. तो मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो कहा जाता है कि जब ऐसा न्यूज़ आपको पता चलता है तो वो काफ़ी एक सदमा आपको देती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी आगे चल के. क्यों होगी ये मैं बता देता हूँ. पहला तो ये है कि आपको सोशल आइसोलेशन से लड़ना पड़ेगा. जो आपके दोस्त हैं अधिकतर, जो आपके रिलेटिव हैं अधिकतर, शायद वो आपसे जो पहले इतना खुलना मिलना होता था शायद वो अवॉइड करें. दूसरा, जो आपका नजरिया है जीवन के प्रति, क्योंकि आपको एक ऑटिस्टिक बच्चे को पालना है और नॉर्मल बच्चे शायद आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, पर ऑटिस्टिक बच्चों से वैसा अगर हो जाए तो अच्छी बात है, पर ज्यादातर देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं
आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के साथ, यानी कि आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके साथ मिलके एक लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। क्योंकि देखा जाता है कि अधिकतर ऑटिस्टिक फैमिलीज में, जहाँ की बच्चा ऑटिस्टिक हो तो माता पिता के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं, चांसेस ऑफ डिवोर्सेस गोज अप। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऑटिस्टिक बच्चा का जो लगाव होता है पेरेंट्स के प्रति वो ज्यादा होता है। तो आपने सुना अनुराग जी को, एक बच्चा जो ऑलरेडी कुछ डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है, उसके ऊपर फैमिली प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर और अननेसेसरी प्रेशर हम लाद देते हैं। एज ए सोसाइटी, एज अ पेरेंट, एज द एंटायर फ्रैटर्निटी, इट इज आवर फेलियर कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। वी एज इंडिविजुअल्स आर वेरी जजमेंटल। हम लोगों की थोड़ी बिहेवियर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और तुरंत अपना जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं। उसी की बेसिस पर हम आने वाले टाइम में उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। बट थैंकफुली देयर आर सम नोबल सोल्स अराउंड अस व्हिच आर trying to do some good things for the society. They have put in so much of effort, they have put in so much of time to understand the needs. ऑटिस्टिक बच्चों की नीड्स को समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनकी तरफ हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। At present, there are more than 40 to 45 such organizations, special schools, parent support groups, speech as well as the behavioral therapy centers for helping the autistic childs. The organizations like Action for Autism, Tane Foundation, Autism Center for Excellence, Assisted Living for Autistic Adults, and many such organizations who are giving 110%, for the society, for these people. They're working a lot. They are working day and night, contributing a lot for the society. लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। People, rather than getting scared, they should feel that they should, deal this thing in a very matured manner. Influencers who have huge fan following, they should join hands and, contribute towards the awareness. अगर वो आगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों तक बात पहुंचेगी। और ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों से। जैसे कि टीवी इंडस्ट्री की बात करें, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ सच अ शो कॉल्ड आपकी अंतरा, जिसमें हमने ऑटिज्म से रिलेटेड एक बच्चे को दिखाया था, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डील करते हुए पेरेंट्स को दिखाया गया था। सिर्फ टेलीविजन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई मूवीज भी बेस करके बनी है, जैसे कि मैं ऐसा ही हूं, माय नेम इज खान, प्लीज स्टैंड बाय और बर्फी। इस तरह की कई नाम हैं। इन सब मूवीज और शो का सिर्फ एक ही मकसद है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को एजुकेट करना। एंड मोर पीपल नीड टू बी एजुकेटेड एंड दे शुड अंडरस्टैंड दैट ऑटिस्टिक पीपल आर आल्सो इंडिविजुअल. They have their own strength. On World Autism Awareness Day, Autism South Africa has one clear message. Autistic people should be viewed in terms of their talents and strength. ये बहुत ही क्लियर है। जरा सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सबको एक बराबर से इज्जत मिले, डिग्निटी, द अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी। क्या सोसाइटी होगी? पूरी रिसर्च से जो मुझे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगी वो है अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल इट केयरफुली, हाउ टू हैंडल इट मैच्योर्डली। उनकी बिहेवियरल पैटर्न को समझना, वो कैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पूरे डे बाय डे की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हैं, द स्मेल, साइट, इन सारी चीजों का उन पे क्या असर पड़ता है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कौन सी चीजें हैं विच अनॉयज देम, एंड लेट्स नॉट डू इट। जो चीजें उनको अनॉय करती है, जो उन चीजों से उनको बहुत इरिटेशन होता है, जो तकलीफदायक है, उन चीजों को ना करें। लेट्स नॉट रिपीट देम। सेकेंड एस्पेक्ट इज एक्सेप्टेंस। इन सब सिचुएशंस को जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्सेप्टेंस फ्रॉम नॉट ओनली द पेरेंट्स, द फैमिली, बट द एंटायर सोसाइटी। हाउ द किड और द इंडिविजुअल इज बीइंग ट्रीटेड आउटसाइड होम, हाउ एवरीबडी ट्रीट्स हिम और हर, कैसे स्कूल्स में बच्चों के साथ वो घुल मिल जाते हैं, टीचर्स उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनके नेबर्स उनको कैसे ट्रीट करते हैं, पड़ोसी के बच्चे कैसे ट्रीट करते हैं पार्क्स में। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है एक इंडिविजुअल ग्रोथ पे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। विल कम बैक विथ अनदर इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल और ट्यूटोरियल वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए थैंक यू।